పదవిని వదిలిన త్యాగమయ జనగుండల తానం పదిలమయ చాలా ఏళ్ల కాంతి ముఖ్యమంత్రులు అయిదామని చెప్పి ఆ సోయింగ్ లేదు. మనకు ఆ సోయింగ్ తెప్పించినటువంటి లీడర్ కోసం గట్టిగా సపోర్ట్. ఈ తెలంగాణ మాదే రాజ్యం అనుకోని గుర్రాజుల గడిల పైన బట్టలు కొట్టడం కోసం వచ్చినటువంటి మా భవిష్యత్తు కోసం సైనిక్ గట్టిగా చెప్పాలి. రెండు చేతుల్ని లేపు రక్షణ గట్టిగా కొట్టాలి. కదిలిండు తెలంగాణ గడ్డ పైన సరిపోతుందా? కదిలిండు తెలంగాణ గడ్డ పైన బట్టలు తప్పకుండా వాడిస్తాం. ఒక్క నిమిషం తర్వాత వాడిస్తాం. ఇప్పుడు డాక్టర్ ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ గారికి హైదరాబాద్ కు సంబంధించిన మహిళా కన్వీనర్ ఆది వెంకటలక్ష్మి గారు, ఆది గోపాలరావు గారు దంపతులు 1 లక్ష రూపాయలు వారు సార్కి సమర్పిస్తున్నారు. సార్కి ఇవ్వడానికి గూగుల్ పే ద్వారా డబ్బులు ఇస్తారు. ఆది వెంకటలక్ష్మి గారు మరొక పెద్దలు డాక్టర్ ఎల్ సంపత్ గారు కూడా 1 లక్ష రూపాయలు ఇవ్వడానికి ముందుకు వస్తున్నారు. వెల్కమ్ సార్, ప్లీజ్.
ఓకే ఓకే ఇప్పుడు జగిత్యాల ఇన్ఛార్జ్ లింబాద్రి గారు, జిల్లా అధ్యక్షులు లింబాద్రి గారు, అడ్వకేట్ మద్దెల నారాయణ ఇన్ఛార్జ్ గారు, వారు నోట్ల దండతో చిరంశేఖర్ గారు నోట్ల దండతో సాక్షి సత్కరిస్తారు. ప్లీజ్ కమన్ తొందరగా. దయచేసి ఇక్కడ మీడియాకి అడ్డంగా నిల్చోకండి ప్లీజ్. మీడియా పక్కన తప్పుకోండి. మీడియాకి అడ్డంగా ఉన్నారు ప్లీజ్, తప్పన తప్పుకోండి. కొద్దిగా లేవండి అక్కడి నుంచి, మీడియా వాళ్ళని కూర్చొని ప్లీజ్, పక్కన జరగండి ప్లీజ్. ఇప్పుడు మన మధ్యలో ఉన్నటువంటి ముఖ్య అతిథి ఎంపీ గారు రామ్జీ గౌతమ్ గారు, వారి గురించి ఒకే ఒక నిమిషం ఒక మాట చెప్తాను. వారు ఈ భారతదేశంలో కశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు ప్రతి రాష్ట్రం తిరిగిన వ్యక్తి. బహన్ కుమారి మాయావతి గారి ఆజ్ఞ ప్రకారంగా దేశంలో ఉన్నటువంటి 15 రాష్ట్రాలకు వారు కోఆర్డినేటర్ గా పనిచేసినటువంటి ఘనత ఉంది. అందుకే అతి తక్కువ సమయంలో బహన్కి వారికి రాజ్యసభ మెంబర్ గా వారిని అంత గొప్ప స్థానాన్ని కల్పించడం అనేది జరిగింది. వారి గురించి ఒక విషయం చెప్తాను మీకు. సారు ఏ విధంగా శ్రమిస్తారంటే, వారు ఇంటికి 4 నెలలకు ఒక్కసారి వెళ్తారు. వారి అల్లారి ముద్దురు కూతురు అయినటువంటి వారి పాప 4 నెలలకు ఒకసారి వెళ్తే వాళ్ళ మమ్మీని అడుగుతుంది, ఎవరమ్మా ఈయన అని. అంటే గుర్తుపట్టలేని పిల్లలు, అంటే అందుబాటులో కూడా లేకుండా 6 నెలలు ఇంటికి వెళ్ళకుండా వారు త్యాగంతో ఈ దేశమంతా పర్యటిస్తూ ఈ రోజు కూడా 7 రాష్ట్రాలకు 9 రాష్ట్రాలకు వారు ప్రధాన చీఫ్ కోఆర్డినేటర్ గా ఉన్నారు. వారు ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ సార్ గారిని ఈ రోజు మనకు తెలంగాణ అధ్యక్షుడిగా అందించిన ఘనత వారికే దక్కుతుందని సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్నాను. కాబట్టి అంత గొప్ప నాయకుడికి వారి అమూల్యమైన సందేశం ఇవ్వవలసిందిగా మనం చేస్తూ, సార్ రామ్జీ గౌతమ్ సార్ ప్లీజ్ వెల్కమ్ సార్. అందరికీ सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, सामाजिक परिवर्तन के गुरुदूत, शिक्षा के जनक महात्मा ज्योतिबा फुले, आरक्षण के जनक कुर्मी राजा छत्रपति साहू जी महाराज, भारतीय संविधान के रचयिता बौद्ध सत्व भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दलितों, पिछड़ों, गरीबों और मुस्लिमों को राजनीति की मुख्य धारा में लाने वाले बाप सेठ DS बोर बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर श्रीकांत श्रीराम साहब एवं बहुजन समाज में जन्मे तमाम संतों, गुरुओं और महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए आज के इस महत्वपूर्ण बैठक में हमारे बीच में उपस्थित तेलंगाना राष्ट्र के कोऑर्डिनेटर मलेश्वरम जी, गंगाधर जी, चंद्रशेखर मुदिराज जी, बालास्वामी जी और जिनको अभी अध्यक्ष से कोऑर्डिनेटर बनाया गया है मन्ना प्रभाकर जी, और साथ ही आज जिनको प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है डॉक्टर RS प्रवीण।
माननीय बहन जी ने आपको प्रदेश का अध्यक्ष बनाया और हमें पूरी आशा और विश्वास भी है कि जिस तरह से पहले भी काम बढ़ रहा था और भी तेजी से काम बढ़ेगा। और आपका जो सपना है सीएम का, हर एक बरेली में सीएम बोलते हैं, वो 2023 में पूरा होगा। और इसके लिए आपको भी काम करना पड़ेगा, आपको विलेज टू विलेज जाना पड़ेगा। जिस तरह से प्रवीण जी आप खुद देख रहे हैं, विलेज टू विलेज जा रहे हैं, गांव में रुकते हैं, उधर एसी भी नहीं है, कूलर भी नहीं है, उधर गर्मी है, सब कुछ है, लेकिन उधर ही रुकते हैं क्योंकि हम बहुजन समाज पार्टी के सिपाही। हमको एसी नहीं चाहिए, हमको खाना मिले ना मिले, लेकिन हम काम करते रहेंगे, अपने मूवमेंट को आगे बढ़ाते रहेंगे। लेकिन वही दूसरी पार्टियां भी इधर हैं, बीजेपी पार्टी भी है और टीआरएस पार्टी भी, तमाम पार्टियां भी ऐसी हैं, और वो लोग भी यात्रा निकाल रहे हैं, विलेज टू विलेज जा रहे हैं। और उनकी यात्रा में और हमारी यात्रा में अंतर है। उनकी यात्रा में जो पैसा लगता है वो धंधा सेठों का होता है, बिजनेसमैन का होता है, लेकिन बीएसपी की यात्रा में गरीबों का पैसा होता है, एक एक रुपए के। उनकी यात्रा में लीडर्स एसी में सोते हैं, कैंप बना के सोते हैं और रात को मटन चिकन बिरयानी खाते हैं, लेकिन बीएसपी के वर्कर चटनी और सांभर और चावल खाते हैं, क्योंकि उनको अंदर विश्वास है कि 2023 में हमको बहुजन राज्य का अधिकार यहां लाना है, तो मेहनत से काम करना और इसके लिए आप सबकी जरूरत है। जितने भी लोग बैठे हुए हैं, अभी मीडिया बंधु हम लोग पूछ रहे थे, कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, मैं भी समझ रहा था, धीरे धीरे मैं समझ लेता हूं कि आप क्या बात कर रहे हैं। कुछ लोगों ने बोला कि ये लोग बोलते माला और मादिया की पार्टी, तो मैं उनको बोलना चाहता हूं ये माला मादिया नहीं, ये बहुजन समाज पार्टी, ये बहुजनों की पार्टी है। 6743 जातियों की अपनी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। और इस बहुजन समाज पार्टी में खास बात है कि बहुजन समाज पार्टी अपने महापुरुषों की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है, माने कि महात्मा फुले की विचारधारा। महात्मा फुले कौन थे भाई? महात्मा फुले मुदिराज थे। मुदिराज बोलते नहीं बोलते आप लोग? महात्मा फुले मुदिराज। और छत्रपति साहू जी महाराज क्या थे? महाराष्ट्र के कुर्मी समाज से थे, साहू बोलते हैं। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो गुरु थे वो छत्रपति साहू जी महाराज और महात्मा फुले थे, माने कि गुरु थे। माने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उनको अपना गुरु माना, आइकन माना है कि हमारे आइकन कौन है? महात्मा फुले और छत्रपति साहू। और उन सब का विचारधारा जो आइडियोलॉजी है, उन सभी आइडियोलॉजी को मिला करके कॉन्स्टिट्यूशन बना। और बहुजन समाज पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाली पार्टी कि हम बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन को, महात्मा फुले की विचारधारा को, छत्रपति साहू जी महाराज की विचारधारा को इस देश में लागू करके रहेंगे। और बहुजन समाज पार्टी कहती भी है कि संविधान के सम्मान में बीएसपी मैदान, ये बहुजन समाज पार्टी का नारा। लेकिन आज तमाम पार्टियां हमारे संविधान पे हमला करना चाहती हैं। यहां तक कि यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने भी बोला कि संविधान को बदलने का समय है। माने कि मैं उनसे कहना चाहता हूं, वोट हमारा, राष्ट्र हमारा, जिसकी नजर हमारे संविधान पे है, गलत नजर, वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। अगर उन्होंने कहा संविधान बदलना, तो आप संविधान बदलने की बात करोगे तो हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। और मुख्यमंत्री कौन बनेगा? बहुजन समाज पार्टी का सिपाही बनेगा। और उधर अभी आपके सामने एक और इतनी घटना है, भारतीय जनता पार्टी के एमपी ने भी बोला कि संविधान को बदलने का वक्त आ गया। बोला नहीं बोला? बोला नहीं बोला? क्या नाम था उनका? आप सब जानते हैं। तो माने कि ये वक्त आ गया है, एक तरफ संविधान को बदलने वाले लोग हैं और एक तरफ ये बहुजन समाज पार्टी संविधान को बचाने वाली पार्टी है।
संविधान की रक्षा करने के लिए, संविधान की रक्षा करने के लिए हम राजनीति करते हैं। राजनीति हमारा कोई पेशा नहीं है। राजनीति तो हम बहुजन समाज के लोगों को उनके उत्थान के लिए करते हैं। राजनीति हमारा कोई पेशा नहीं। राजनीति हम करते हैं कि बाबा साहब के संविधान को लागू कर सके, 100% बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन को हम इंप्लीमेंट कर सके। इसलिए हम पॉलिटिक्स करते हैं। हम पॉलिटिक्स करते हैं इस देश में गरीबी खत्म हो जाए। हम पॉलिटिक्स करते हैं इस देश में ऊंच नीच खत्म हो जाए। हम पॉलिटिक्स करते हैं फ्री एजुकेशन फॉर ऑल। हम पॉलिटिक्स ये करते हैं। हम पॉलिटिक्स रोजगार की करते हैं, एम्प्लॉयमेंट की करते हैं। एम्प्लॉय हम बना सकें ज्यादा से ज्यादा, इकोनॉमिक रिवोल्यूशन ला सके इस देश के अंदर, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन ला सके। ये काम बहुजन समाज पार्टी करना चाहती है। और आज तक आप सबको पता है कि इस देश के अंदर जो भी पार्टियां हैं, उनके पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जब वो सत्ता में आएंगे तो इस देश में सामाजिक परिवर्तन करेंगे, आर्थिक मुक्ति का आंदोलन करेंगे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के उद्देश्य में लिखा हुआ है साफ साफ कि जिस दिन बहुजन समाज पार्टी इस देश में आएगी, प्रदेश में आएगी, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन प्रदेश में चलाएगी। और जिस दिन मैं आपके दावे के साथ नहीं कहता हूं कि जिस दिन 2023 में अगर आप सब लोगों ने कमर तोड़ मेहनत कर ली, ना थकने वाली, ना रुकने वाली और ना बिकने वाला समाज खड़ा कर लिया, तो 2023 में बहुजन समाज पार्टी यहां सरकार बनाएगी। और इसके लिए आप सबको मेहनत करना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा। घर भूल जाइए, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के लिए घर से निकल जाइए और बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों को और बहुजन समाज को जोड़ने का काम करें। और उनको अपनी विचारधारा के बारे में बताइए। उनको बताइए कि बाबा साहब का संविधान कितना पावरफुल है, बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार दिया कितना पावरफुल है। बाबा साहब ने हमें वोट इसलिए नहीं दिया इसे हम 500 रुपए में, 1000 में दारू की बोतल में, चिकन बिरयानी में, मटन बिरयानी में इसे बेच दें। बाबा साहब ने हमें वोट का पावर इसलिए दिया कि हम इस देश के राजा बन सके। बाबा साहब ने हमें वोट का पावर इसलिए दिया। और इस वोट की पावर के बारे में बताना है आपको। गांव-गांव में जाइए, बताइए उनको कि आप लोग हजारों साल से पहले हम लोग गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहे और बाबा साहब ने हम सब की गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया। और बाबा साहब ने हमें राइट दी, अच्छे कपड़े पहनने का राइट दिया, एजुकेशन का राइट दिया, जॉब का राइट दिया, सर उठा के जीने का राइट दिया। ये सारे राइट किसने दिए? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने। हमें यहाँ तो गांव-गांव जाना पड़ेगा और उधर बताना पड़ेगा कि व्हाट इज द पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट इज द पावर ऑफ वोट। और इसके बारे में बाबा साहब ने भी कहा है। बाबा साहब ने कहा है कि मेरे बच्चों 3 बातें बाबा साहब ने करी। आपको शिक्षित बनना है। क्या बोला? एजुकेट योरसेल्फ, शिक्षित बनो, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। दूसरी बात बाबा साहब ने कहा, एजुकेट योरसेल्फ, आपको संघर्ष करना है। बहुजनों का जीवन ही संघर्ष है और संघर्ष ही आपका जीवन है। और आपको जीवन भर संघर्ष करना है। जब तक आपके कदम कामयाबी तक चूके तब तक आपको संघर्ष करना है। और तीसरी बात, ये बात बाबा साहब ने कही। और राजा बनाने के लिए बाबा साहब ने हमें वोट की पावर दी। और बाबा साहब ने कहा कि कैप्चर द टेंपल ऑफ पावर फॉर योर एमेंसिपेशन बाय वोट, माने उस शक्ति के मंदिर पे कब्जा कर लो मेरे बच्चों, बाय वोट, इस वोट के जरिए। और जिस दिन आप इस शक्ति के मंदिर पे कब्जा कर लोगे, माने कि पार्लियामेंट पे कब्जा कर लोगे, उसी दिन आपके जीवन के सारे दुख और तकलीफें खत्म हो, कोई दुख नहीं होगा लाइफ के अंदर। इसलिए हमें एक कसम खानी है। आज जो एक बड़ी संख्या में आप लोग इधर आए हुए, बड़ा हुजूम एयरपोर्ट से लेकर इधर तक रहा। और ये ऐसा ही हुजूम और ऐसा जुनून, ऐसा जोश आपके अंदर बरकरार रहना चाहिए, कंटिन्यू 2023 तक। जब तक हम सत्ता में ना आ जाए तब तक घटना नहीं चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। और पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ आपको विलेज टू विलेज जाना है, विलेज टू विलेज में बैठना है, उनको समझाना है कि बहुजन समाज पार्टी ही हमारी अपनी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी ही हमारा भला कर सकती है। और हमने करके भी दिखाया।
हम हवाई बातें नहीं करते, हमने करके भी दिखाया। जब माननीय बहन जी उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रहे, तो माननीय बहन जी ने करके दिखाया है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी बातें करने में नहीं, करने में विश्वास करती है। बात करने नहीं, करने में विश्वास करती है कि हम करके दिखाएंगे, बात नहीं करेंगे। और माननीय बहन ने उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी ठेकों में, माने कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में, टोटल गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में जितने भी जॉब थी उसमें 21% रिजर्वेशन दिया एससी को और 7.5% रिजर्वेशन दिया एसटी को। एजुकेशन को फ्री कर दिया, टोटल एजुकेशन फ्री फ्रॉम फर्स्ट क्लास टू हायर एजुकेशन फॉर एससी एसटी एंड पुअर ओबीसी के लिए। जो एससी एसटी के लोग हैं उनके 0 फीस पर एडमिशन होगा। अगर आप बीटेक करना चाहते हैं, एमबीए करना चाहते हैं, एमबीबीएस करना चाहते हैं, इवन आप फॉरेन में पढ़ना चाहते हैं, तो आपका जो एडमिशन होगा वो 0 फीस पे होगा। आपको कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। ये सिस्टम कहाँ लागू हुआ? ये लागू हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार। और हमारे बहन ने गर्ल्स एजुकेशन के लिए बात की। जो मेरी बहन 10th क्लास पास करेगी उसको साइकिल मिलेगी, एक साइकिल और 10,000 रुपए, 10,000 रुपए मिलेंगे। और जब वो 12th में पहुंचेगी, माने कि 11th पास करेगी, तो 15,000 रुपए उसको और मिलेंगे। 15,000 प्लस हो जाएगा, माने 25,000 रुपीज गर्ल्स की एजुकेशन के लिए। और यही नहीं, महामाया आशीर्वाद योजना, माननीय बहन जी ने एक महत्वपूर्ण योजना थी बहन जी की, महामाया आशीर्वाद योजना। माननीय बहन जी ने कहा कि जब गरीब के घर में बेटी पैदा होती है तो बहुत दुखी होता है। वो सोचता है कि मेरे घर में बेटी पैदा हुई, अब मैं इसको कैसे पढ़ाऊंगा और कैसे इसकी शादी करूंगा। ये टेंशन होती गरीब आदमी के अंदर। तो माननीय बहन जी ने कहा कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आपकी बहन मुख्यमंत्री है, और जब आपके घर में बेटी पैदा होगी तो उसके नाम पे तुरंत सरकार 10,000 रुपए की 10,000 की एफडी कराएगी। वो एफडी 21 ईयर बाद आपको मिल जाएगी 2 से 3 लाख रुपए के साथ। 2 से 3 लाख रुपए, माने कि अब आपको टेंशन जरूरत नहीं है मेरी बेटी बड़ी होगी, शादी कहां से करेगी, पैसा कहां से आएगा। इस तरह से हमने काम किया। हमने 4.5 लाख लैंड, 4.5 लाख हेक्टेयर लैंड हमने पट्टे बांटे हैं गरीबों को, लैंड लेस पीपुल को, जिनके पास लैंड नहीं थी, चाहे एससी का हो, चाहे एसटी का हो, चाहे ओबीसी का हो, कोई भी हो, अगर वो लैंडलेस है और विलेज में रहता है, पुअर है, तो हमने 4.5 लाख एकड़ लैंड हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 2-2 एकड़ जमीन देने का काम किया। 5 लाख मैंने घर बनाए। माननीय बहन ने 5 लाख फ्लैट बना के दिया, 2 कमरे का 2 बेडरूम फ्लैट बना के दिया। माननीय श्री कांसी राम साहब शहरी आवास योजना, और उसमें टोटली फ्री फॉर ऑल, कोई कास्ट सिस्टम नहीं था, टोटली फ्री फॉर ऑल, माने जो भी गरीब है उसको वो 2 कमरे का फ्लैट इधर मिलने का काम किया। और विलेज के अंदर जो गांव में रहते थे उनको माननीय बहन ने अंबेडकर आवास दिया। क्या दिया? अंबेडकर आवास दिया। इस तरह के काम हमने उत्तर प्रदेश में माननीय बहन ने किए हैं। और मैं दावे के साथ में कहता हूं, अगर आप लोगों ने अगले 1.5 साल, माने कि करीब 1 ईयर 6 मंथ कंटिन्यू, न रुकने वाले न थकने वाली मेहनत करी, तो आपका सपना, माननीय कांसी राम साहब का सपना और माननीय बहन जी का सपना 2023 में तेलंगाना में पूरा हो करके रहेगा। और हम सब चाहते हैं कि माननीय साहब का सपना पूरा हो, माननीय बहन जी का सपना हो, और आप सबका सपना यहाँ पूरा हो, और बहुजन राज्यम इधर स्थापित होना चाहिए 2023। और ये मेरी ऐसी आपसे आशा और विनती है कि आप सभी लोग मेहनत से काम करेंगे, आपस में भाईचारे के साथ में काम करेंगे, कोई आपस में मतभेद नहीं होना चाहिए। हमारा और आपका एम एक है, मकसद एक है, गोल इज 1। और 2023 माने 2023 में बहुजन राज्यम इन तेलंगाना, दिस इज अवर एम। हम एम के लिए काम करेंगे और इसके अलावा कोई और काम नहीं करेंगे। और आज आप सब लोगों की डिमांड थी, लंबे समय से डिमांड थी, यू वांट टू सी चीफ, तेलंगाना चीफ डॉक्टर आर एस प्रवीण जी, और उनको माननीय बहन जी ने बना दिया। तो मैंने बहन जी से बोला
मैंने बहन जी वहां पे सारे लोग चाहते हैं, सारे लोग चाहते हैं, मैंने बहन जी सारे लोग चाहते हैं प्रवीण जी वहां पर अध्यक्ष बने, सारे लोग चाहते हैं, तो मैंने कोई दिक्कत नहीं, आप मैंने बना दिया, जाओ उधर बोलो। अब आपकी बारी है, देखिए आपने जो कहा उधर हो गया, मान्या बहन जी ने कर दिया। अब मान्या बहन जी का भी सपना है कि बहुजन राज्यम तेलंगाना, अब आप सपना पूरा करोगे बहन जी का? हाथ उठाइए, बोलिए। सारे लोग नहीं उठा रहे हैं, थक गए क्या आप लोग? इधर भी सारे लोग, पूरा होगा, पूरा होगा। जय भीम, धन्यवाद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। हम पूरा तेलंगाना के समाज के पूरा समाज हम आपको